Hello everyone, my name is Ramveer from Apples Academy and I am the history teacher. I am starting a new theme. In old book, this theme related to the theme 15. Okay students, in new books, it reduce the numbers. So in this theme, this is very important and this is the story of the after independent and who will rule in India after some time, that is notes about the Constitution of India, framing the Indian Constitution. Constitution के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस. क्लास 6-7 से शुरू हो जाता है अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज अ important feature. It is a set of rules which tells us how the people govern, how the government govern, who became the ruler and who have the powers. ये सब हमें बताती है. तो the story is different. So different story tells us about the number one partitions. Actually, I started this chapter from this topic. In partitions, we have before the partition of India in 1946 Constituent Assembly became framing by the people of India. At that time, there were many members in the Constituent Assembly, and this assembly at that time have both the country's people, India and Pakistan. But after the partitions, it divided and एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई, एक इंडिया की हो गई. At last 299 members were there, and in constitutions actually there were different policy or different duty of the people who were the member of this assembly, and they wanted a complete sense to how the India govern in future and what will be the story. Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, K.M. Munshi, Pandit Jawaharlal Nehru and Sarojini Naidu, Dr. Rajendra Prasad, all these were the member, and they wanted more and more good constitution of India, which became free. जो फ्री होगा will free of the corruption or sovereign freedom, rights, duties, all these things, no discrimination of people. That there are the features of Indian Constitution. Next is the Constituent Assembly. Actually, I have declared, discussed earlier about the Constituent Assembly. It was held in 1946, and Constituent Assembly present their report to the Indian government in 26 November 1949. और आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 से लागू हो गई थी इंडिया में, भारत में जो संविधान लागू हो गया था. इन अर्लियर एज पीपल ऑफ इंडिया दे हैव नो नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे वांटेड रूल्स. उन्हें यही नहीं पता था कि संविधान क्या होता है, पुलिस क्या होती है, क्या हमें करना है, देश क्या होता है. तो इन द बिगिनिंग टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, प्रिंसली स्टेट वाज अ बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम. और प्रिंसली स्टेट को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो पॉलिसी थी, इट बिकेम वेरी हार्ड टुवर्ड्स द पीपल एट दैट टाइम. हैदराबाद और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने जो डिक्लेयर हो गए थे एक अवध प्रिंसली स्टेट अपने आप में, एंड दे नॉट वांटेड टू शेयर एवरीथिंग, और दे वांटेड दैट इट इज़ द स्टेट ऑफ देयर इंडिपेंडेंट स्टेट. उनका कंट्री है, उनके पूर्वजों का देश है, ये कोई भारत देश नहीं है. तो उन्होंने अपने आप को ऐसे डाला, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और इसको अच्छी तरह से लागू कर दिया. नेक्स्ट है vision of the constitution. It was the vision it means that what type of constitution will be held in India. It error free, no corruption, no discrimination, women have the women will be the honor, or women equality, right of equality, so no social discrimination, no casteism, untouchability will be and in India, and sovereign country, freedom, their people have the fundamental rights and duties. They will perform more and more freedom in future of India. No language, no discrimination on language of people. ये विजन था उस समय कि भारत एक ऐसा देश, ऐसा एक संविधान भारत में लागू होगा जो अपने आप में एरर फ्री होगा और उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई शोषण नहीं होगा, एक डिफरेंट होगा, ब्रिटिश रूल के द्वारा चला गया जो संविधान है बिल्कुल अलग होगा.
तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वर द सोर्सेज? देयर वर मैनी सोर्सेज. डू यू नो अबाउट दैट द पीपल और मेंबर ऑफ द इंडिया दे स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, इन सभी कंट्री से कुछ ना कुछ हमने सोर्स लिया है. बट इन इंडिया एट दैट टाइम 295 आई थिंक 395 शेड्यूल में से 200 शेड्यूल वर कंसिडर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वो सारे एक्ट ऐसे थे गवर्नमेंट के जो 1919 में चला, 1930 के आसपास, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट थे उनको भारत ने अपने संविधान में लागू कर दिया था और वही हमारे भारत के लिए सोर्स बन गए थे. इसके लिए एग्जांपल जैसे कि यूएसए में जब भारतीय लोग मेंबर्स संविधान उसका सीखने के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ पर सीखा था फंडामेंटल राइट्स. इट मीन्स प्रेजिडेंशियल पावर और प्रेजिडेंशियल जो रूल है और फंडामेंटल जो राइट है वो हमारे संविधान में अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है. ब्रिटेन गिव द टोटल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. इट मीन्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी हैव ब्रोट बाय द फेडरलिज्म जैसे हो गए. ये सब जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट अनदर पॉइंट. The will of the people. The will of the people. It means the what people have the benefit from the constitution in future. Actually, according to the wish of the people or will of the people, constitution have a modern तो नहीं बना, किसे कह सकते हैं कि एक ऐसा संविधान बनेगा. It became flexible and rigid also. और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना दिया गया था. In this constitution there were no scope of the untouchability or discrimination. And all they became equal in the India. ये संविधान बड़े स्तर पे बना गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना है उसमें इतने 22 चैप्टर थे उस समय और अपने आप में एक अनोखा संविधान बना गया जिसमें सभी को एक इक्वलिटी के साथ जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया था. नेक्स्ट राइट्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट देयर वर 7 फंडामेंटल राइट इन स्टार्टिंग. जो 7 फंडामेंटल हमारे राइट थे वो दिए गए थे. उसमें राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक और राइट है जो हमारा शोषण के विरुद्ध, डिस्क्रिमिनेशन और शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा. और रिलीजियस राइट फ्रीडम लोगों को दी गई है इसमें. और राइट टू रिमेडीज. आप लोगों को पता कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज कंसिडर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. इसके द्वारा ये वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट्स. ओके स्टूडेंट्स. रेजोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. रेजोल्यूशन इट मीन्स हाउ मैनी टाइप्स बिकेम द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका जो मूलभूत है, जो इसकी आधारभूत स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको कोई नहीं बदल सकता. नो कैन चेंज. बट ऑलमोस्ट मैनी मोर चेंजेस कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी. According to Indian Constitution, India have give freedom that in 1965 English became the language of India. 1965 तक इंग्लिश भारत की लैंग्वेज रहेगी और हिंदी को एक मदर टंग के रूप में दिया गया है. और इंडिया में नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी लैंग्वेज को नहीं दिया गया. हिंदी एंड इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज देयर are 22 scheduled languages are prescribed by the Constitution of India in which we can discuss about everything. और इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे डायलेक्ट हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है. मदर टंग ऑल्सो इम्पोज इन एवरी स्टेट. उनकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है कि वो अपने राज्यों में अलग अलग से अपनी जो है लैंग्वेज उनको अडॉप्ट कर सकता है. ओके. नाउ स्टेट पावर. State power, it means sovereign state. India have sovereign and India under this policy, India not control under any foreign country. किसी विदेशी व्यक्ति के हाथों में या देश के हाथों में इंडिया नहीं रहेगा. India total free in decisions and inner power of India. Next, fear of domination. Fear of domination means there were many castes and many classes at that time. लोगों को ये डर था कि कहीं पर ये डोमिनेशन ना हो जाए लोगों का. Almost who wrote the constitution, but in the constitution there were nothing okay of such things. हाँ, इंडिया में कुछ हुआ है अकॉर्डिंग टू मी. इंडिया में क्या हुआ है कि पॉलिटिकल में तो हम वी ऑल आर इक्वल, बट सोसाइटी एंड इकोनॉमिक लेवल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा इसमें ये रहा है कि मैनी पीपल क्रिटिसाइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इसने इकोनॉमिक इक्वलिटी किसी को प्रदान नहीं की. रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी जो थी इंडिया में पहले भी थी तो उसको कर देते तो इंडिया की कंडीशन पॉवर्टी जो आज है वो शायद बहुत ख़त्म हो जाती. लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट
become a good constitution of the world, which tells us about the importance of the people, which tells us about our rights and duties. In this video, it is my main motto. Okay, students, thank you.